فرما بردار کے نافرمان، انہیں کیا مومن کے منافق، انہیں کیا جنتی کے جہنمی. اللہ خالی صورت ہماری نگاہیں دیکھو پہچان لے. اللہ قیامت کے میدان میں انسان کو یہ کہے گا، اے میرے بندے یہ جان لے اللہ رب العزت، یہ جان لے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نام و اعمال سے خوش ہے، تیرے حرکتوں سے خوش ہے، تیری زندگی سے خوش ہے. جا، آج میں تیرا حساب بھی نہیں لوں گا، کتاب بھی نہیں لوں گا. بغیر نام و اعمال کو اوپن کرے، بغیر حساب و کتاب کے میرے رحم و کرم سے ڈائریکٹ جنت میں چلا جا. ایسا بول کو اللہ تعالیٰ بندوں کو بھیجیں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر. محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزت مآب، عفت مآب میری ماں اور بہنوں، آج تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کی اسی شہر سدی پیٹ کی مسجد توحید اہل حدیث میں آج میں آپ کے سامنے وقت کی قدر اور زندگی کا مقصد اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ بولنے کے لیے کھڑا. اللہ جزائے خیر دے یہاں کے ذمہ داروں کو. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے جماعت میں اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق کی محبت اللہ پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قرآن مجید سورہ والعصر اور سورہ الفجر کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس میں اللہ وقت کی، زمانے کی قسمیں کھا کر بیان کرتا ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی. ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کیے. وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر پر ڈٹے رہے. اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کو اللہ اجاگر کرتا ہے. جیسے اللہ نے کہا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. ولیال عشر، اور قسم ہے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی، 10 راتوں کی. والشفع والوتر، قسم ہے شفق کے دن کی اور قسم ہے وتر کے دن کی، یعنی 9 ذی الحجہ کی، 10 ذی الحجہ کی. کبھی دن کی، کبھی صبح کی، کبھی عصر کی، کبھی زمانے کی. اللہ جب چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کو اللہ بتانا چاہتا ہے. ہماری زندگی انہی وقت کے قدر اور وقت کے اس گھڑی کے پہیے سے ہماری زندگی چل رہی ہے. یہ جو آپ گھڑیاں وال کلاک کی شکل میں یا اپنے ہاتھوں کی گھڑیوں کی شکل میں آپ دیکھتے ہو کہ اس میں ایک سیکنڈ کا کانٹا ٹک ٹک کی شکل میں آگے بڑھ رہا ہے، اور سیکنڈ کے پلس کیا ہے، نمبر وائز نمبر، ہر سیکنڈ اپنے پلس کیا ہے بڑھا رہے. گویا ہم کو یہ گھڑیاں، یہ وقت اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے پیدا تو تو ہو چکا ہے، اب خبر کی دنیا کی جانب اس دنیا کو چھوڑ کر تجھے رخصت ہونا ہے. آنے والا ہر سیکنڈ ہم کو موت سے قریب کرتا ہے، گزرنے والا ہر دن ہم کو اس دنیا سے دور کر رہا ہے. یہ طلوع ہوتا ہوا سورج، یہ ڈھلتا ہوا سورج اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ طلوع ہونے والا سورج ہمیشہ
अपनी जवानी पर बरकरार नहीं रहता, अपनी रोशनी में बरकरार नहीं रहता, सर पर अपनी जवानी के जोश को लेकर हमेशा बाकी नहीं बैठता। जब वो दुनिया में तुलू हो चुका है तो शाम तक धीरे धीरे हटते हटते वो क्या है, अपने गुरूब की जगह पर गुरूब हो ही जाता है। उसकी रोशनी में जो दोपहर में तेजी थी, जो जवानी में कुव्वत थी, बुढ़ापे में कमजोरी आ ही जाती है। गुरूब होते वक्त सूरज की शुआएं मांद पड़ ही जाती हैं, यहां तक कि मुकम्मल वो सूरज गुरूब हो जाता है, उसकी सारी रोशनी खत्म हो जाती। दुनिया से बूढ़े होने के बाद हम भी मिट जाएंगे, हमारा वजूद, हमारा नाम निशान सब खत्म हो जाएगा। इल्ला ये कि अगर हमने कोई नेकी के काम किए, कोई अच्छे काम किए, दुनिया काफी देर तक याद रखकर हमको दुआएं देगी, लेकिन हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। जैसे सूरज डूब जाएगा, सूरज का वजूद हर शाम ढलकर खत्म होता है, हमारा वजूद भी खत्म हो जाएगा। जिंदगी की कदर कीजिए, वक्त की कदर कीजिए। वक्त क्या चीज है, बर्फ बेचने वाले से पूछिए। एक बर्फ की बड़ी सिल रखे हुए, बर्फ का बड़ा एक डल्ला रखे हुए, लोगों को, ग्राहकों को चीख चीख कर पुकार रहा है, लोगों मेरी बर्फ खरीद लो, मेरा बर्फ खरीद लो। क्योंकि दोपहर की धूप में चलती हवाओं से उसके बर्फ से निकलने वाला एक एक कतरा उसे इस बात का पैगाम देता है, जितना जल्द बेच सकेगा तेरा सरमाया तेरे हाथ लगेगा, अगर देरी करेगा खतरा खतरा बनकर ये सारा बर्फ तेरा पिघल जाएगा, तेरा सरमाया भी तेरे हाथ नहीं लगेगा। चीख चीख कर वो बर्फ को बेचते रहता है ताकि उसका सरमाया कहीं नुकसान ना हो जाए। वक्त क्या चीज है, वक्त की क्या अहमियत है, एक मामूली अखबार छापने वाले को पूछ लीजिए। अखबार जब छापता है, सुबह की सूरज की किरणों के साथ या सूरज की किरणों से पहले घर घर अखबार वाला अखबार लाकर डालता है, तो यह अखबार सुबह के वक्त 30 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का बिकता है। जो जितना बड़ा मैगजीन रहेगा, जितना नेशनल लेवल रहेगा, उतनी उसकी कीमत बढ़कर रहेगी। कम से कम अखबार वाला 5 से 10 रुपए का होता है, उससे बढ़कर ही कीमतें होती हैं। लेकिन यही अखबार सुबह में 30, 50, 100 में बिकने वाला जब शाम तक वक्त ढल जाता है तो इसकी जर्रा बराबर भी वैल्यू नहीं रहती। हालांकि पेपर वही है, पेपर के अंदर न्यूज भी वही है, उसके अंदर की रंग रंगेलियां वही है। उस कई एक सफात को बनाने के लिए कितनी जगह सफर करके उन्होंने तस्वीरें ली, वहां की रिपोर्ट लिखी, कई एक टीम ने मिलकर उस अखबार को तैयार किया। सुबह का 100 रुपए का अखबार शाम में रद्दी में डालने के लायक 1 रुपया या 2 रुपया रद्दी के काबिल बन जाता है। वक्त की कदर, सुबह में 100 रुपये में था वही अखबार, शाम में रद्दी में, रद्दी मतलब गुजरी में, स्क्रैप में डालने के लायक 1 रुपये किलो या 2 रुपये किलो के हिसाब से तोलते ही निकालकर फेंक देते, यूज एंड थ्रो के हिसाब में। क्या अहमियत रही इसकी? वक्त बताता है कि वक्त की क्या अहमियत है, वक्त की क्या कदर है। अपनी जवानी की कदर नहीं करोगे, अपनी जवानी में अल्लाह को राजी नहीं करोगे, अपनी जवानी में इबादतें इलाहिया नहीं बचा लाओगे, जब बुढ़ापा आएगा हाथों पैरों की ताकत निकल जाएगी और उस वक्त अमल करना चाहोगे, उस वक्त इबादतें करना चाहोगे, हज को जाना चाहोगे, उम्रे को जाना चाहोगे, वक्त आपको इजाजत नहीं देगा। अगर आपका जी चाह रहा है कि बस जबरदस्ती जाओ, शायद आपको साथ नहीं देगी। आपकी हड्डियां, आपके आज़ाए बदन, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी बसारतें, आपके समातें सब कमजोर पड़ चुकी हैं। ना आप उठकर चल सकते हैं, ना तवाफ कर सकते हैं, ना सफा मरवा की सही कर सकते हैं, ना कोई दूसरे अरकान आप अदा कर सकते हैं। हज तो बहुत बड़ी इबादत, उम्रा भी नहीं कर सकता, उम्रा करने की भी हैसियत नहीं है हजरत की। जब जवानी थी, जब वक्त था, जब फुर्सत थी, कभी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का ध्यान नहीं गया। खूब पैसे अल्लाह दिया, दौलत दिया, जवानी दिया, ताकत दिया, सारी चीजें थी, लेकिन हज उम्रे करने वक्त नहीं था बेचारे के पास। जब हज उम्रे करने की नियतें कर रहा है, दुनिया की दौलतें जमा कर लिया,
जिंदगी पूरी नमाज़ां छोड़ को, रोजे छोड़ को, तिलावत छोड़ को खाली दौलत कमाने में लग गया। अब बुढ़ापा आ गया, जरा नेकियां कर लूं, जरा हज कर लूं, जरा उम्रा कर लूं, जरा क्या भी बड़े बड़े काम कर लूं। नहीं है, सारे बॉडी के अंदर ताकत चली गई। जो करना है अपनी जवानी में कीजिए, वक्त की कदर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको जवानी के लम्हात दिया, इबादत करने के लिए फुर्सत के लम्हात दिया। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, कयामत के मैदान में इब्ने आदम के पैरों में जुम्बिश भी नहीं आ पाएगी। अल्लाह 5 बातों का सवाल करेगा। इन 5 बातों में से एक बात का सवाल अल्लाह यह भी करेगा, मैंने तुझे जवानी दिया, क्या किया? मैंने तुझे फुर्सत के लम्हात दिया, क्या किया? ये 2 सवाल अल्लाह करेगा, एक जवानी का, एक फुर्सत के लम्हात का। उसके बाद इल्म के बारे में भी अल्लाह पूछेगा, माल के बारे में भी अल्लाह ताला पूछेगा, कैसा कमाया ये भी पूछेगा, कहां खर्चा करे ये भी पूछेगा। लेकिन उसमें के 2 सवाल, फुर्सत के लम्हात, जवानी के अय्याम, अल्लाह सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगे? आजकल के हमारे नौजवानों को देख लो, हमारे नौजवानों के हाथ में ये फोन आ गया, इस फोन के पीछे इतना वक्त बर्बाद करती, इतना वक्त बर्बाद करती, उनको खुद पता नहीं है कि इसके पीछे कितने घंटे नौजवानों को बर्बाद हो रही। पूरा वक्त इस मोबाइल के पीछे, इंटरनेट के पीछे जाया कर रहे हमारे नौजवान, अंदाजा भी नहीं है उनको। जितना टाइम ये मोबाइल को दे रही हमारे नौजवान, एक सुबह अंकी खोलने से लेकर रात के 12-1 बजे तक हमकी मूछ को नींद करने तक ये मोबाइल कभी जुदा नहीं होता हमारे नौजवानों से। खाली नौजवान हमें, मर्दाने भी, भाई का भी, बुढ़े भी, औरता भी, सबके हाथ में, रास्ते में भीख मांगने वाले भिखारी के पास भी रहता है फोन, सब कुछ आ गया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, वक्त की जो इंसान कदर नहीं करेगा, वक्त को सही इस्तेमाल नहीं करेगा, वक्त अपने पैरों के नीचे डालकर उसे रोन देगा। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, नया दौर कभी दौरा दिखाता नहीं। शायर कहता है, एक बार वक्त गुजर गया, दोबारा तुम लाख चाहो तो वो वक्त दोबारा नहीं ला सकते। जितना टाइम हमारे बूढ़े, बच्चे, मर्दाने, औरता ये मोबाइल इंटरनेट के पीछे जाया कर रही, इसमें क्या आधे में का आधा वक्त मस्जिद में लगा डाले तो, कुरान की तिलावत में लगा डाले तो, दीन सीखने सिखाने में लगा डाले तो, इनकी दुनिया भी कामयाब, इनकी आखिरत भी कामयाब। उतना वक्त जाया कर रही इस मोबाइल इंटरनेट के पीछे। क्या समझ रही? कौन बोलने वाला नहीं, कौन पकड़ पूछने वाला नहीं, कौन बोलेगा बच्चों को? अरे माँ बाप खुद मोबाइल में, इंटरनेट में और मोबाइल के रीला में खुद माँ बाप दीवाने हो पड़े हैं। एक तरफ घर में आ गए, बाप मोबाइल लेकर बढ़ गया, एक तरफ माँ मोबाइल लेकर बढ़ गई, बच्चे मोबाइल लेकर बढ़ गए। या नहीं तो अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं मिल रहा तो एंड्रॉइड टीवी में कोई एक वीडियो डालने को बढ़ गए। पूरी फैमिली मोबाइल मेंटल फैमिली होकर बैठ गई। बोलने वाला है कौन? जो बोलने वाले हैं उन्होंने खुद दीवाने हो पड़ी, वक्त जाया करने को, वक्त बर्बाद करने को। अल्लाह के वास्ते जवानी की कदर करो, वक्त की कदर करो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जान लो। शबाबक क़ब्ल हरमिक, तेरी जवानी की कदर कर ले तेरा बुढ़ापा आने से पहले। वस्सेहतिका क़ब्ल सुक़मिक, तेरी तंदुरुस्ती, सेहत की कदर कर ले तू बीमार पड़ने से पहले। वग़िना का क़ब्ल फ़ख्री, तेरी दौलत जितना अल्लाह दिया उसकी कदर कर ले तू भिखारी बनने से पहले। वफ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, तेरी फुर्सत के लम्हात को गनीमत जान ले तू किसी बिजी टेंशन में मुब्तला होने से पहले। वहयातिका क़ब्ल मौतिक, तेरी जिंदगी की गनीमत जान ले तेरी मौत आने से पहले। जवानी की कदर बुढ़ापे से पहले, दौलत की कदर फकीरी आने से पहले, सेहत की कदर बीमार होने से पहले, फुर्सतों की कदर मशगूल होने से पहले, जिंदगी की कदर मौत आने से पहले। इंसान की कदर कर लो बोलिए अल्लाह के नबी। मोमिन, अक्लमंद मोमिन इसकी कदर करेगा, इसको सही इस्तेमाल करेगा। बेवकूफ क्या करेगा? जानबूझकर वक्त जाया करेगा और अपनी जवानी को नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगाकर बर्बाद करेगा। जब होश आएगा कुछ करना भी चाहेगा, अल्लाह ताला उसे साथ नहीं देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बयान फरमाते क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसे बंदे को हाजिर करेगा जिस बंदे पर अपनी ढेर सारी नेमतें निछावर किया रहेगा। अल्लाह सवाल करेगा, बोल मेरे बंदे, दुनिया में किस चीज से तुझे कम किया? मैं किस चीज से कम किया? मैंने तुझे एक मुसलमान मां बाप के कोख से तेरे जन्म दिलाया, अपाहिज बना के पैदा नहीं किया, सही सालिम बना के खूबसूरत बना के तुझे पैदा किया। और तू जैसा जैसा बड़ा होता गया तेरे बदन के आज़ा के अंदर में कुव्वत बढ़ता गया। मैंने तेरे देखने के लिए आंखें बनाई, सूंघने के लिए नाक बनाए, सुनने के लिए कान बनाए, चबाने के लिए दांत बनाए, और सोचने के लिए दिल बनाया, और समझने के लिए क्या है तेरा दिमाग बनाया, और सोचने गौर तदब्बुर करने के लिए तेरा दिल बनाया, चलने के लिए पैर बनाया, पकड़ने के लिए हाथ बनाया, और तेरे खून को दौरा कराने के लिए मैंने तुझे हाथ बनाया, तेरा दिल बनाया, और तेरे पानी को फिल्टर करने के लिए तुझे किडनियां गुर्दे बनाया। अल्लाह ताला अपनी नेमतें बाड़ी की बताएगा। और इतना ही नहीं, ऐ मेरे बंदे, क्या मैंने तुझे तेरे दिल के सुकून के लिए बीवी बच्चे नहीं दिया? तुझे रहने के लिए घर बंगला नहीं दिया? तेरे चलने फिरने के लिए गाड़ी और सवारी के इंतजाम क्या मैंने नहीं किया? इतना ही नहीं, तेरे कमाई में बरकत देकर क्या मैंने तुझे माल और दौलत नहीं दिया? सारी दुनिया की नेमतें मैंने तेरे फायदे के लिए क्या नहीं बनाया? अल्लाह तबारक व तआला अपनी हर नेमतों से इंसान को याद दिलाएगा, हर नेमत का एतराफ करते कहेगा, इलाही तू मुझे मेरा सारा बदन दिया, खूबसूरत बदन दिया, रहने के लिए बीवी दिया, देखने के लिए सुकून के लिए बच्चे दिया, और जिंदगी गुजारने के लिए मकान दिया, माहौल में इज्जत दिया, जमात में एक अच्छा ओहदा दिया, जमात में इज्जत दिया, खानदान में एक बड़ा मुकाम दिया, और मेरे चलने फिरने के लिए सवारियां भी दिया, मेरे घर में नौकर चाकर भी दिया। सारी नेमतों का मैं एतराफ करता हूं अल्लाह, तू बेशक मुझे किया। अल्लाह ताला कहेगा, ऐ ना शुक्र, बता इसका शुक्रिया तूने क्या किया? मेरी इन नेमतों के बदले में मेरी शुक्रगुजारी में तूने क्या किया? मैं तुझे दिन में 5 वक्त की नमाजें फर्ज किया था, साल में एक बार मैंने तुझे रोजे फर्ज किया था, जिंदगी में एक बार मैंने तेरे दौलत देकर हज फर्ज किया था। बता, दिन की 5 फर्ज नमाजें, साल के 1 महीने के फर्ज रोजे, जिंदगी का एक मर्तबा किया जाने वाला फर्ज हज, क्या ये फराइज तूने अदा किया या नहीं किया? ये अल्लाह ख्वाब गफलत में पड़ा रहा। अरे अल्लाह, मैंने नमाजा पढ़ा, ना रोजे रखा, ना इबादत करया, ना हज करया, ना उम्रे करया। अरे अल्लाह, गफलत में जिंदगी चली गई, दुनिया कमाने के नशे में इतना मगन हो गया कि कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आया, कब मैं खबरस्तान को गया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। अरे अल्लाह, रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मुकिनून। इलाही, अब मैंने देख लिया, अब मैंने सुन लिया, अब मुझे यकीन हो गया, अब मुझे दुनिया में वापस भेज, मैं तेरे अच्छे अच्छे इबादतें करके आऊंगा, तुझे खुश करने वाले काम करके आऊंगा। अल्लाह के सामने तरस को पूछता कि अल्लाह भेज डालता, जा बा, पूरी जलजले से दुनिया करने का तबाह बर्बाद करके अल्लाह नेस्तो नाबूद कर डाला। दुनिया है कि नहीं, दुनिया को अल्लाह मिटा डाला। अब इसके वास्ते क्या फिर अल्लाह दुनिया बना भेजता? जा बा, बैठ जाओ वहां एक लागत हो। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करेगा, अपने जवानी में रब की इबादतें नहीं करेगा, जो दौलत अल्लाह ने दिया उस दौलत को अल्लाह के राह में सही खर्च नहीं करेगा, उस दौलत का हक अदा नहीं करेगा, क़यामत के दिन पछता पछता कर रब जुल जलाल वल इकराम के सामने सवाल करेगा, ऐ अल्लाह, मैं बहुत गलती में था, बहुत गफलत में था, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मुझे दुनिया में वापस भेज, मैं जर्रे अच्छे काम कर ले कहता हूं। अल्लाह ताला उसे हरगिज मौका नहीं देता। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यअतिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह की दी हुई
में खर्च करो, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता मौत का परवाना लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी, जब तुम मर जाओगे अल्लाह के सामने जाकर यही कहोगे, लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ऐ मेरे अल्लाह मुझे जर्री मोहलत दे दे, थोड़ी मोहलत दे दे, फ़अस्सद्दक़ा, मैं सदका करूंगा, माल तेरे राह में लुटाऊंगा, व अकुन मिनस सालिहीन, और नेकोकार आदमियों में बन जाऊंगा। ऐ अल्लाह थोड़ी मोहलत दे। अल्लाह जत्ती मोहलत देना था, जत्ता वक्त देना था, जत्ती जवानी देना था, जो अल्लाह ताला लम्हात देना था सब देखो देख डाला। एक नंबर का बखील, एक नंबर का कंजूस, एक नंबर का दुनिया तलब, एक नंबर का जाहिल और एक नंबर का बदमाश। अल्लाह उसकी सारी चीजें देख को मौत के परवाने को ले जा खड़ा कर डाला फरिश्ते। अरे हल्लक में हाथ डाल, जान काट लो इसकी। ऐ फरिश्तों, मुझे जरी मोहलत दे दो, मैं मेरी दौलत की वसीयत लिखकर लोगों के हवाले करना चाहता हूं। ये दौलत यहां खर्चा करना, वो दौलत वहां खर्चा करना, ये प्रॉपर्टी मेरी बीवी को दे देना, ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को देना, वसीयत लिखूंगा। नो टाइम, नो मोहलत, नो फुर्सत। फरिश्ते बोलेंगे हरगिज हरगिज वक्त नहीं तेरे पास। ऐ फरिश्तों, जरा एक दो रकात नमाज पढ़ को अल्लाह से बहुत गंदे गंदे कामा कर डाला, गुनाह के कामा कर डाला, काले काले कामा कर डाला, जरा तौबा करना चाहता हूं, 2 मिनट का लम्हा का मुझे फुर्सत दे दो। नो टाइम, नो चांस, और तेरे लिए कोई अल्लाह ताला की जाने से गुंजाइश नहीं। अल्लाह का हुक्म है हमको, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब किसी के मरने का टाइम आ जाता है, अल्लाह का फरिश्ता 1 सेकंड जल्दी भी नहीं करता, 1 सेकंड देरी भी नहीं करता। उसी लम्हे में अल्लाह का फरिश्ता हल्लक में हाथ डालकर जान निकाल लेकर चले जाएगा। फुर्सत ही नहीं देता। आज फुर्सत है, ख्वाब गफलत में ही नौजवान भी, बड़े भी, बुढ़े भी, सब भी वो मौत स्टम्प को देखेंगे ले क्या होता सब। वो क़यामत में अल्लाह क्या की हिसाब लेता करते, वो पूछे स्टम्प को देखेंगे ले। है इतनी जसारत आपके अंदर, इतनी जसारत है आपके अंदर, अल्लाह के सवाल के जवाब देने की जसारत है आपके अंदर। अल्लाह अकबर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद में एक दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, मेरे अल्लाह क़यामत के मैदान में मेरा आसान हिसाब ले लेना। अम्मा आयशा बार बार ये सुनी तो कहने लगी, अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला आपका हिसाब आसान नहीं लेगा तो फिर किसका हिसाब आसान लेगा? आप आसान हिसाब का तो कई को एक बार रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं आप, जबकि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिया। अल्लाह ने जन्नत का आला मुकाम की बशारत आपको दे दी। आप जन्नती हैं, आप जन्नत में जाएंगे, अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। फिर भी अल्लाह हिसाब आसान ले, अल्लाह मेरा हिसाब आसान ले, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ऐसी दुआएं क्यों कर रहे हैं आप? तो नबी कहते हैं आसान हिसाब का मतलब तुझे नहीं मालूम आयशा। आसान हिसाब क्या? सुन ले, जब क़यामत के मैदान में इंसान नामा अमाल लेकर खड़ेगा अल्लाह के दरबार में, अल्लाह ताला को उसके नामा अमाल को ओपन कर को पढ़ने की जरूरत नहीं। इन्हें क्या अच्छा कराया, क्या गंदे कामा कराया, इन्हें क्या तौहीद परस्त, क्या मुनाफिक, क्या मुशरिक, क्या इन्हें मुल्हिद, इन्हें कौन करेगा? अल्लाह को पढ़कर देखने की जरूरत नहीं। सूरतों देखकर अल्लाह पहचान लेता, इन्हें कितने पानी में डूबा सदमी करेगा। इन्हें मेरा फरमाबरदार क्या नाफरमान, इन्हें क्या मोमिन, क्या मुनाफिक, इन्हें क्या जन्नती, क्या जहन्नमी। अल्लाह खाली सूरत हमारी निगाहें देखो पहचान लेता। अल्लाह क़यामत के मैदान में इंसान को ये कहेगा, ऐ मेरे बंदे ये जान ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जान ले, अल्लाह तबारक व तआला तेरे नाम आमाल से खुश है, तेरे हरकतों से खुश है, तेरी जिंदगी से खुश है। जा, आज मैं तेरा हिसाब भी नहीं लूंगा, किताब भी नहीं लूंगा, बगैर नाम आमाल को ओपन करे, बगैर हिसाब किताब के मेरे रहमो करम से डायरेक्ट जन्नत में चला जा। ऐसा बोल को अल्लाह ताला बंदों को भेजेगा।
भेजते 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 बड़े खुशनसीब होते हैं लोग जो बगैर हिसाब किताब के डायरेक्ट अल्लाह के फजल करम से जन्नत में जाएंगे। ऐ आयशा, जब तक और दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से जन्नत में ना जाए। कोई माई का लाल अपने अमाल के बलबूते पर हरगिज जन्नत में नहीं जा सकता। ऐ अल्लाह के नबी, क्या आप भी अपने नाम अमाल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जा सकोगे? नबी ने बयान फरमाया, मैं भी अपने नाम अमाल के बलबूते से जन्नत में नहीं जा सकता। वलाकिन यतगम्मतनी रब्बी, जब तक मेरे रब की रहमत मुझे ना ढांक ले, अल्लाह की रहमत ढांकेगी तो ही मैं जाऊंगा, वरना नहीं जा पाऊंगा। और जब अल्लाह ताला कहता रहेगा कि मेरे बंदे तू जा जन्नत में सीधा, मेरी बंदी तू भी जा जन्नत में, अरे मेरे बंदे तू भी जा जन्नत में, तेरी जिंदगियों से मराजी था, मुझे खुश करने वाले बहुत अच्छे काम तुमने किया, मेरी बेहतरीन इबादत तुमने की, वक्त का सही इस्तेमाल किया, अपनी जवानी की इबादत मेरे नाम तुमने कर दी, जाओ तुमसे मैं राजी हूं, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओ। ऐसा भेजते भेजते लोगों को अपने फजलो करम से जन्नत में रवाना करते करते अचानक अल्लाह एक आदमी से कहेगा, तू जरा बाजू रुक जा। बगैर हिसाब के जन्नत में नहीं, जरा बाजू रुक। अल्लाह रुका था और उस आदमी को बोलता, नाम अमल ओपन कर। नाम अमल ओपन होता। अल्लाह उसके नाम अमल में नेकियां भी देखता, गुनाह भी देखता। अल्लाह उसे सवाल करता, कई को बा ऐसा करया, कई को बा जमा करया, कई को बा फलां का कंपा डुबाया, कई को बा फलां की प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया, अपने सगे भाई को मर्डर कर डाला ना रे तू, अपनी बहन की इज्जत लूट लिया ना रे तू, अपने भाइयों का खत्म कर को आया, रिबता कर को आया, चाड़िया चुगलियां कर को आया, चोरी कर को आया, सूद खा को आया, रिश्वत खा को आया, शराब पी को आया, जिना कर को आया, जादू कर को आया। अल्लाह ताला जब बंदे से सवाल करेगा, पता मेरे बंदे ऐसा गुनाह तूने क्यों किया और ये जुर्म तूने क्यों किया? अल्लाहु अकबर। ऐ आयशा, जिस बंदे से अल्लाह सवाल कर ले, तूने ऐसा क्यों किया, अल्लाह के क्यों का जवाब देने की मजाल किसी माई के लाल में नहीं होगी। कोई माई का लाल अल्लाह के क्यों का जवाब दे ही नहीं सकता। और जिसका हिसाब अल्लाह ले ले वो हलाक और बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह नाम अमल ओपन करा, अल्लाह सवाल करा, अल्लाह के सवाल का जवाब देने की जसारत किसी के अंदर नहीं होगी। गोया उसका हिसाब अल्लाह लिया, उन्हें बर्बाद हुआ। इसीलिए मैं अल्लाह ताला से तहज्जुद में ये दुआएं मांगता हूं, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, इलाही मेरा आसान हिसाब ले ले। आयशा, आसान हिसाब का मतलब यह है अल्लाह कयामत में हमारे नाम अमल को ओपन ही ना करे, बल्कि अल्लाह कयामत के दिन हमारी निगाहें देखकर यह कह दे, ऐ मेरे बंदे तेरी जिंदगी से मैं खुश था, बगैर हिसाब और किताब के तू डायरेक्ट मेरे फजल से जन्नत में चला जा। इसे कहते हैं आसान हिसाब। और इसी आसान हिसाब की मैं अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर भीख मांगता हूं, इलाही मेरे नाम अमाल को मत ओपन कर, क़यामत में मुझे सवाल ही मत कर, तेरे रहमो करम से बगैर हिसाब किताब के डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर दे। कौन डर रही, कौन सवाल कर रही? कायनात के वो हस्ती, कायनात के वो पैगंबर, वो रहमतुल लिल आलमीन, जिनको अल्लाह ने इंसानों में अशरफुल मखलूक बनाया, अशरफुल मखलूक में बड़ा अशरफ व अकमल मुकाम दिया, अंबिया का इमाम बनाया, सारी दुनिया के सरताज बनाया, इतने बड़े कायनात के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से तहज्जुदों में गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं, आसान हिसाब ले मेरे अल्लाह, तेरे नबी का आसान हिसाब ले। हमें रात और दिन गुनाहों पे गुनाह करने वाले, एक नंबर के धोखेबाजा, झूठ बोलने वाले, अमानत में खियानत करने वाले, एक दूसरे को धोखा देने वाले, एक दूसरे का माल चोरी करने वाले, और एक दूसरे की इज्जत लूटने वाले, और एक दूसरे के ऊपर जादुआ करने वाले, शिर्क और बिदअत के काम करके मरने वाले। बताओ, एक दिन में वो नबी एक भी गुनाह नहीं करते थे, लेकिन हर दिन 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह करते थे। आज हम लोग रोजाना 100 गुनाह जरूर कर लेते हैं, लेकिन एक दिन में एक मरतबा भी अपनी जबान से अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह नहीं निकलता, एक बार भी अल्लाह से तौबा नहीं मांगते। लेकिन अकल देखो फिरती, कभी दुआ करे अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, इलाही क़यामत में हमारा हिसाब आसान ले, कब तो दुआ करे।
गुनाह करने के बाद कब तो तौबा करे, गुनाह करते जा रही है, इंटलेक्ट फिरते जा रही, गुनाह करते जा रही, तकब्बुर करते जा रही। जबकि अल्लाह ताला क्या करता, मेरा बंदा जब गुनाह करता तो अल्लाह ताला फरिश्तों को बोलता अभी मत लिखो, इसके गुनाह मत लिखो, मैं देखना चाहता हूं शायद मेरा बंदा तौबा कर ले और मैं इसकी गलतियों को माफ कर दूं। अपनी जिंदगी का मकसद जान लो, किस मकसद से अल्लाह ने पैदा किया। सूरह ज़ारियात की 53 नंबर आयत में जिंदगी के मकसद को अल्लाह बयान किया। अल्लाह ताला कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के गर्ज से पैदा किया, इबादत के गर्ज से पैदा किया, बोलता अल्लाह ताला। जिंदगी को अल्लाह क्यों बनाया, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है कि हम उसकी इबादत करें। अच्छा, वो हमारी इबादत का मोहताज नहीं है। लोग ये समझते रहना अल्लाह ताला को हमारी इबादत होना, अल्लाह तबारक व तआला को हमें इबादत करे तो अल्लाह का फायदा होता, नहीं का तो नहीं होता। हरगिज हरगिज नहीं, हम इबादत करें हमारा भला, हमें इबादत नहीं करे हमारा बुरा। अल्लाह ताला हमारी इबादत का मोहताज नहीं है, हरगिज हरगिज नहीं है। इबादत जिंदगी का मकसद है हमारा, लेकिन अगर हमने अपने मकसद को भूलकर अपने जिंदगी के अल्लाह के तखलीक के मकसद को भुलाकर अगर हम पैसे कमाने के पीछे लग गए तो गोया हमारे से तो बड़ा गाफिल कोई भी नहीं। हमें क्या समझ ली, हमारी जिंदगी का मकसद कमाओ रे, जोरू बच्चों को पालो रे, घर में बिरयानी खा को बेरशीटा वाले सो जाओ रे, ये तच रे हमारा मकसद, समझ लिया। हमारी जिंदगी का ये मकसद नहीं है। जानवरों को भी पाल रहा अल्लाह, हम इंसान माशाल्लाह कमारी, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारे बिल्डिंगा है, जानवरों का कोसा तो कारखाना है। तब तो देखी अरे ये बैल का मोटर मैकेनिक है कहते, वो बकरी का वो ऑटो व्हीलर का ऑटो मोबाइल का दुकान है कहते, अरे ये कौवे का, ये तोते का, ये चील का, फला चॉकलेट कुरकुरे की दुकान है कहते। कब तो सुनी नहीं ना, एक जानवर का, एक परिंदे का एक दुकान नहीं, एक बैंक बैलेंस नहीं, क्या अभी नहीं। अल्लाह उनको पाल रहा, बेहतरीन अंदाज में पाल रहा। हमें बड़े बड़े बिल्डिंगा बना ले को, सैटा कर ले को, गाड़िया में फिर ले को, बैंक बैलेंस रख ले को, एक एक अकाउंट में लाखों के पैसे रख ले को, फिर भी इससे परेशान रहती हमें गोया सबा खाता नहीं, भूखा मरता का ना। एक रास्ता है मस्जिद का, एक रास्ता है मार्केट का, मस्जिद को बिस्तर को भी आता नहीं, डायरेक्ट मार्केट में घुसता। बुखार आया तो भी दुकान ओपन करने बैठता, सर्दी है तब भी दुकान में बैठता, पेट में दर्द है तब भी दुकान ओपन करने बैठता। क्या कि मोशन लग गई कहते, बार बार लेटरिन को भागना पड़ रहा कहते, वहां से दुकान के कोने में एक लेटरिन खाना बना लेता, लेकिन नहीं छोड़ता। मार्केट का दिन ये, सीजन का टाइम ये, जुलाबा लगे क्या हुआ, डायरेक्ट पैसे कमाते रहना, आते रहता, पैसे लूटते रहता, बराबर कमाते रहता। नशा चढ़ गया रहता पैसे जमाने का, अपनी सेहत को बर्बाद कर ले को, अपनी जवानी को बर्बाद कर ले को, जमा करता जमा करता जमा करता, क्या हुंडी, पैसा की कुंडी जमा कर 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 बड़े कुंडे जमा कर लेता। तब तक जवानी रहता का, हिम्मत ताकत रहता का। जैसे ही जवानी चले आती, बुढ़ापा आता, हल्लू किडनी डैमेज होती, हार्ट को स्ट्रोक मारता, 2 ब्लॉक आते, 3 ब्लॉक आते, जवानी में बिरयानी खाया सो, चिकने चिकने चाटा सो, क्या कि रगा ब्लॉकेज हो गई कहते, यहाँ राना में से टांगरा में से रगा खींच को यहाँ बाईपास सर्जरी करको करे जीता कहते, नहीं कहते इंटेक्स सीधा खबरस्तान को चाहता कहते, मैं मरना नहीं चाहता, कितने लाख होना लो, मिंजो हट बचाओ। जवानी में भी जुलावा लगा तो भी दुकान में बैठ को कमाया, बुखार आया तो भी दुकान ओपन करे, सर्दी लगी तो भी दुकान ओपन करे, खांस ले गोटा खांसे तक बैठा तो भी पैसे जमा करे, पूरी जवानी में सेहत की फिक्र किए बिना पैसों को जमा किया। अब जैसे ही बुढ़ापे में हल्लू खट्टा निकलते रहता, एक 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 एक, अब फिर वापस वो सेहत पाने का से जितनी कुंडी जमा करा था हल्लू डॉक्टर के हवाले रख डालता। मेरी किडनी होना, डायलिसिस में मैं नहीं मरना चाहता, ये लोग कितने लाख रुपए होना ले लो, किडनी के वास्ते इतने लाख, हार्ट बाईपास सर्जरी के वास्ते इतने लाख, अरे ये क्या कि बीपी आ गई कहते, शुगर आ गई कहते, उसके वास्ते इतने लाख, और सेहत को पाने के वास्ते जवानी में कितनी कुंडी जमा कराया था पूरी खाली कर डालता। लास्ट में क्या होता, खाली हाथ पत्ते खा हो बैठ जाता, चुपके इधर उधर मुंह देख ले, क्या मिला क्या
तेरी जिंदगी का यह मकसद नहीं है। अगर तू 5 वक्त नमाज पढ़ा रहता, रोजे रखा रहता, नमाज कुरान की तिलावत करे रहता, टाइम टाइम पर सदका खैरात करे रहता, गरीबों की मदद कर तो दुआया लिया रहता, ना आज तेरे किडनी फेल होते थे, ना तुझे आज हार्ट अटैक आता था, ना तुझे बीपी शुगर लगता था, ना तुझे कैंसर अटैक होता था, ना ये बड़ी बीमारियां तुझे लायक होती थी। अरे वो गरीबों की दुआओं से अल्लाह तेरी हिफाजत कर कोई बीमारियों से बचा लेता था। रे दीवाने नहीं, पैसे कमाना जिंदगी का मकसद समझ ले छोड़ा, वो जिंदगी का मकसद नहीं है। इबादत अल्लाह की करना वो जिंदगी का मकसद है। 1 महीना रोजा रखने पर साइंसदान कहते हैं, सर्च करके सूरज तुलू होने से पहले से लेकर सूरज गुरूब होने तक अपने मैदे को अगर इंसान बगैर खाए साल में 1 महीना अगर उसे खाली रखे तो उसके बॉडी के हाजमे को इतना जबरदस्त अल्लाह निजाम बना देता है, साल भर उसे कई बीमारियां लायक नहीं होती, उसका मैदा उतना जबरदस्त हो जाता। 1 महीना रोजा रखा तो साइंसदान सर्च करके बोले अल्लाह की कोई भी इबादत, अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म हिकमतों से खाली नहीं है, हिकमतों से भरा हुआ है। लेकिन हट्टा कट्टा रमजान में भी रोजे रखो नहीं मरता। कई रकरानी भाई नहीं मौल साहब गैस होता मिंजे, कई रकरानी भाई नहीं मौल साहब शुगर की बीमारी है मौल साहब मिंजे, कई रकरानी भाई नहीं मौल साहब जरा जब जब खाना होता रहना मिंजे, नहीं का तो चक्कर चक्कर आती मिंजे, और जवानी में रोजे नहीं रखता। जिंदगी का तेरा मकसद है कि अल्लाह की इबादत कर। और हम लोग आज हमारे जमात में इत्तेहाद बाकी नहीं है, एक दूसरे को एक सप में तो खड़े होती हमें, पवा से पवा लगा ले को, खदमा से खंडे लगा ले को। अभी हम सामने मिलकर हम पीछे भी गए रहता नहीं, पीठ के पीछे बुराया, सामने हंसले को, मुंह करने का फाड़ने को, ऐसे दुआएं देता, पीठ के पीछे बदुआएं देता। 1 नंबर का मुनाफिक हर जगह है, ये डबल पॉलिसी। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के मैदान में ऐसे लोगों को अल्लाह लाएगा जिनका एक धड़ रहेगा, एक सर रहेगा, लेकिन 2 चेहरे रहेंगे, 2 चेहरे, 2 मुंह में 2 आग की जबानें, मुंह में आग की जुबान। कौन है ये? एक लोगों के पास जाको इधर के रास के बातें लग जा, उधर अंगार लगाने वाला, उधर के बातें लग जा, इधर अंगार लगाने वाला, 2 भाइयों के बीच में फितने पैदा करने वाला, 2 मियां बीवी के बीच में फूट डालने वाला, 2 जमात के लोगों के बीच में अंगार लगाने वाला, फितने पैदा करने वाला, इधर के बातें उधर, उधर के बातें इधर, ऐसे फितने खोर, ऐसे लड़ाई रखने वाले, ऐसे लोगों को क़यामत के मैदान में 2 चेहरों के साथ अल्लाह हाजिर करेगा। इस्लाह करने वाले बनो, मुस्लिह बनो। इन्नमल मुमिनून इख्वा, अल्लाह ने तुम्हें भाई भाई बनाया। फासलिहु बैना अख्वैकुम, आपस में सुलह करके अपने लड़ाई झगड़ों को दूर कर लो, इत्तेहाद से रहो, इत्तेफाक से रहो, मोहब्बत से रहो। जैसा तुम्हारे हाथ मिलते हैं, जैसा तुम्हारे सीने से सीने मिलते हैं, जैसे नमाजों में कंधे से कंधा, कदमों से कदम मिलते हैं, दिलों को भी वैसा मिला लो अंदर से। देख ले बाजू बाजू मिलने खड़े, लेकिन इसका दिल उधर हैदराबाद में उसका है, तो इधर वाले का दिल डायरेक्ट उधर चेन्नई में, बेंगलुरु में उधर मरे रहते। देख ले बाजू बाजू खड़े रहती, लेकिन अंदर से दिला सवा के नहीं हजारों के किलोमीटर दूर मरे रहते। नहीं, अंदर से दिलों को एक कर लो। अल्लामा इब्ने असाकिर की एक किताब है तारीख दिमश्क बोलकर, उसके अंदर एक वाकया एक बहुत बड़े आलिम अपने उस्ताद के साथ किसी मैयत के जनाजे में शरीक होने के लिए जाते रहते, तो रास्ते में उनके उस्ताद एक जगह से गुजरते जहां जरे कुत्ते नाचते रहती, खेलते रहती, एक दूसरे के ऊपर लड़ते रहती, मजाक करते रहती, एक दूसरे को कुत्ते चाटते रहती, एक दूसरे से घुल मिल कर रहती कुत्ते। और उस्ताद बताती, देखो इन कुत्तों के अंदर कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कैसा वो एक दूसरे से लाड़ कर रही, मया कर रही, मोहब्बत कर रही, एक दूसरे को चाट रही, यानी घुल मिलकर कितनी मोहब्बत से है ये कुत्ते। जब मैयत को दफन करने के बाद वापस आते रहती उसी रास्ते से,
तो उन्हीं कुत्तों को देखते हैं, अब वो कुत्ते किसी और जगह हैं और वहां एक मरा सो मुर्दा पड़ा, क्या वो बकरी थी या वो कोई और जानवर मर को पड़ा था, उसका जिक्र नहीं है उस तारीख की किताब में, बल्कि एक मुर्दार मर को पड़ा था। अब कुत्ते खाने के लिए झपट रहे थे, यही कुत्ते जो जाते वक्त एक दूसरे से मोहब्बत के साथ लिड़को, एक दूसरे से चाटना, एक दूसरे से खेलना कर रहे थे, जैसे ही वो जानवर का मुर्दार इनके बीच में दिखा, अब एक दूसरे पर भौंक रहे थे, एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरे कुत्ते को वो मुर्दार खाने के निवाले नहीं दिए सरकार, एक दूसरे पर झपट कर भगा रहा था कुत्ता, जो उनमें का बड़ा कुत्ता था, ताकतवर कुत्ता, दूसरे कुत्तों पर झपट रहा था और भगा रहा था, किसी और को वो निवाला छीने नहीं दे रहा था। एक दूसरे के दुश्मन बनकर वो एक दूसरे से लड़ते खड़े थे उस निवाले के लिए। उनके उस्ताद अल्लामा इब्न शरीह वो कहते हैं कि हमारे उस्ताद जब हमको वहां खड़ा करके एक नसीहत देकर कहते कि देखो, जब हम जा रहे थे यही कुत्ते कितनी उल्फत और मोहब्बत से आपस में घुल मिलकर खेल रहे थे, लेकिन जब हम वापस आए इनके बीच में अल्लाह ताला ने दुनिया रख दिया, खाने की कोई चीज अल्लाह ताला ने रख दिया। जब इन कुत्तों के बीच में दुनिया नहीं थी, खाने की अशिया नहीं थी, तो ये बड़े मोहब्बत से एक दूसरे से घुले मिले थे। जब इनके बीच में दुनिया आ गई, इनके निवाले आ गए, तो यही कुत्ते एक दूसरे के दुश्मन बन गए और एक दूसरे पर हमला करने वाले बन गए। ये मिसाल है इंसानों की। जब तक इनके बीच में दुनिया नहीं रहती, बड़ी मोहब्बत से रहती है लोग, जैसे ही इनके बीच में दुनिया आ जाती, दौलत आ जाती, जवानी आ जाती, कोई ओहदा आ जाता, तकब्बुरी आ जाती। अरे भाई आज एमएलए बना रहूंगा, आज बड़ा पीएम बना रहूंगा, सीएम बना रहूंगा, काउंसलर बना रहूंगा, आज तू अमीर बना रहूंगा, मुतवल्ली बना रहूंगा, सेक्रेटरी बना रहूंगा। ये तेरा एमएलए पन, ये तेरा ओहदा हमेशा बाकी रहने वाला नहीं। जवानी क्या आ गई, कमजोरों पे जुल्म कर रहा, दौलत क्या आ गई, गरीबों फकीरों को निकाल को सक रहा। ये दौलत भी हमेशा रहती नहीं, ये जवानी भी हमेशा रहती नहीं, और ये ओहदा भी हमेशा रहता नहीं। हमें कहीं एक दूसरे के ऊपर झपटना, एक दूसरे को जुल्म करना, एक दूसरे को जलील करना। अल्लाह के नबी कहते एक मोमिन को जलील करने के लिए इतना ही काफी है कि वो दूसरे मोमिन को अपनी निगाहों में हकीर समझने लगे। मैं अच्छा, इन्हें बेकार इंसान, मैं बेहतर और इन्हें एक नंबर का बदतर, ऐसा समझने वाला अल्लाह की निगाह में एक नंबर का जलील इंसान उन्हें। सुनो नबी दाऊद किताब ज़ुहद की एक हदीस है। एक आदमी आता है, इमाम हजरत उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा से सवाल करता है। एक ताबई आकर एक सहाबिया से, बूढ़ी सहाबिया उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा, अबू दरदा की बीवी उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा से आकर सवाल करता है कि ए उम्मे दरदा, है हमारी मां, मुझे एक बीमारी लायक हो गई है, आप उसका इलाज बताइए। तुझे क्या बीमारी है? बहुत बड़ी बीमारी है मुझे, क्या आपके पास उसके इलाज का कोई हल है? क्या है बीमारी? मेरा सीना सख्त हो गया, मेरे दिल के अंदर सख्ती आ गई है, मैं किसी पर रहम नहीं करता, मैं हर किसी के साथ बदतमीजी से पेश आता हूं, हर किसी से झड़क झड़क कर बात करता हूं। मेरे इस कड़वे रवैये से, मेरे इस शार्ट टेम्परपन से, मेरे इस क्या है बुरे तरीके से मेरे रिश्तेदारा दूर हो गई, दोस्तान दूर हो गई, सब घर मेरा क्या है बिखर गया, मेरा सीना सख्त हो गया। बताइए मैं अपने दिल को मोम करने के लिए क्या करूं? उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा उस आदमी को कहती हैं कि यकीनन तेरी बीमारी बहुत बड़ी है, तेरे दिल को सख्ती से मोम बनाने के 3 चीजें हैं जो मैंने नबी से सुना है। वो 3 चीजों पर अगर तू अमल कर लेगा, इंशाअल्लाह तेरे सख्त दिल को भी अल्लाह ताला मोम बना देगा। वो 3 चीजें क्या करना? नंबर 1, जब भी कोई बीमार हो उसकी इयादत किया कर। हमें बीमारियों की इयादत इस नहीं करते। जब तक हमें सेहतमंद रहती, हमारे
محلے میں ہمارے رشتہ داروں میں کون بیمار ہے سن کو بھی نہیں دیکھتے, پوچھ کو بھی نہیں دیکھتے, ہمیں سن کو بھی نہیں دیکھتے, پوچھ کو بھی نہیں دیکھتے. اجی وہ خالہ بیمار ہے کہتے جی, اجی ہمارے بھائی جان بیمار پڑی کہتے جی, اجی ان کا آپریشن ہے کہتے جی. بیگم سناتے رہتی ہم نہ رشتہ داروں کے کہانیاں, اجی فلاں رشتہ دار میں ایسا ہو گیا کہتے, فلاں کی کڈنیاں فیل ہو گئے کہتے, فلاں کو آپریشن کرنے پیسے نہیں ہے کہتے, انہوں دیکھیں دے بیمار ہیں, یہ رشتہ دار دیکھیں دے اما کے رشتہ داروں کو یہ ہوا, بابا کے رشتہ داروں کو یہ ہوا, سسرالی رشتہ داروں کو یہ ہوا, میرے رشتہ داروں کو یہ ہوا. سنتے رہتا ہو کیا ہو دے لے, ہو کیا ہو دیکھیں گے لے, ہو کیا ہو بات کریں گے لے. نہ بات کرتا, نہ خیر خیریت پوچھتا, نہ جا کو ہو کیا جی جان بچانے کے واسطے ڈاکٹر دیکھیں دے 3 لاکھ کا آپریشن بولنا لیا, تمہیں دیکھیں غریب آدمی آپریشن کرا لینے پیسے ہے بھی یا نہیں بھی, 1 لاکھ روپے جمع کرنا 1 ہفتے کے اندر بولا نہیں کہ تو مر جاتا آپریشن نہیں کرائے تو ہے کیا نہیں, یہ لو میری طرف سے 10,000 روپے رکھ لو. قرضہ دیتا کہ زکات دیتا کہ نہیں, ہاتھ بدل قرضہ حسنہ کیا تو بھی دیتا کہ مدد کرتا کہ پوچھ کو بھی نہیں دیکھتا, سن کو بھی نہیں دیکھتا, مرے دے انہیں مرتا مجھے کیا پڑیا, رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا, کسی کا دیکھ ریکھ نہیں کرتا. ام دردہ کہتی ہے اے اللہ کے بندے مریضوں کی عیادت کیا کر, اللہ تیرے سخت سینے کو موم بنا دے گا. مریضوں کی عیادت کیا کر. دنیا کے نشے میں گھومنے والوں کبھی اسپتال کا چکر کاٹ لیا کرو, جا کر دیکھو ایک ایک مریض صحت پانے کے واسطے کیسے خون کے آنسو رونے کو پڑا, لاکھوں کے پیسے ڈاکٹروں کو رکھ کر آئی سی یو میں آکسیجن کو ڈائلیسس کرانے میں اور دنیا کی صحت پانے میں. وہ کوسی کی امریکہ کی ٹیکنالوجی کا تھے, یہ جاپان کی ٹیکنالوجی کا تھے, فلاں اسپتال میں بڑے بڑے فلاں جاپان کے مشنری ہیں کہتے, فلاں یہ علاج یہاں ہے کہتے, وہ علاج وہاں ہے کہتے, بھاگتا لاکھوں کے پیسے خرچہ کرتا, لیکن ہمیں سن کو بھی دیکھتے نہیں, پوچھ کو بھی دیکھتے نہیں. ام دردہ کہتی ہیں مریضوں کی عیادت کیا کر. نمبر 2, جنازے کے پیچھے چلا کر. جس کا بھی جنازہ جا رہا, چاہے تیرے رشتہ دار ہو, جماعت کے کوئی افراد ہو, توحید پرست ہو, جنازے کے پیچھے جایا کر. اور میت میں دفن ہونے تک آپ ان کے ساتھ رہا کرو, میت میں دفن ہویا کرو. اور دوسرا کام کیا, جنازے کے پیچھے جاؤ, میت میں دفن کرو. تیسرا کام, قبرستان کی زیارت کیا کرو, قبروں کی زیارت کیا کرو. اس سے اللہ تعالیٰ دلوں میں آخرت کی فکر جگاتا, سخت سینہ بھی موم بن جاتا. مریضوں کی عیادت کرو, جنازوں کے پیچھے جا کر میت کو دفن کرو, اور تیسرا قبرستان کی زیارت کرو. یہ 3 کام تم کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سخت سینے کو بھی موم بنا دے گا, تمہارے دلوں میں آخرت کی فکر جگائے گا. اپنوں کے لیے جو تمہارے اندر کڑوا پن ہے, یہ تمہاری مزاج میں اللہ تبدیلیاں بنا دے گا. یہ کام کرو کہ ام دردہ اور وہ شخص, وہ تابعی ان باتوں پر عمل کرتے گئے, ان کا دل موم ہو گیا, ان کے سارے رشتہ دار قریب آ گئے, ان کے دوست و احباب قریب آ گئے, اور وہ خوش ہو کر آ کر شکریہ ادا کرنے لگے کہ اے ام دردہ, نبی کا کتنا پیارا نسخہ آپ نے مجھے بتایا, یقیناً میرا سینہ سخت تھا, اب میرا دل اللہ تعالیٰ نے موم بنا دیا. ہماری جماعت میں سخت سینہ رکھنے سے جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہوتے. جس کے بھی دل سخت ہیں, مریضوں کی عیادت کرو, جنازوں میں شریک ہویا کرو, قبرستان کی زیارت کیا کرو. کب تک دولت کا تو بازار کا چکر کاٹو گے, مسجدوں کی ہوا بھی کھایا کرو, اللہ کی عبادت کیا کرو, تہجدوں میں اٹھ کر گناہوں کی معافی مانگا کرو, اور جماعت کو ہمیشہ اتحاد سے باقی رکھو. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اے اللہ کے بندو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, آپس میں اختلاف نہ کیا کرو. اختلاف کرے تو کیا نقصان ہوتا. اللہ کے نبی کہتے ہر پیر ہر جمعرات اللہ کے پاس نامہ اعمال جاتے ہیں. ابھی یہ شعبان کا مہینہ چل رہا نا, شعبان کے مہینے میں حد سے زیادہ نامہ اعمال اللہ کے پاس جاتے. نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھتے تھے, پہلے شعبان سے 14 شعبان تک. 15 شعبان سے 30 شعبان تک روزے نہیں رکھنا. کوئی عورتوں کے گئے سال کے فرض روزے چھوٹے رہتے انہوں رکھ سکتی, لیکن نفل روزے نہیں رکھنا.
یہ शाबान के महीने में नामा अमाल जाते, पीर जुमेरात को बंदों के नामा अमाल अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह ताला हर एक की मग़फ़िरत करता है सिवाय उन दो आदमियों की जो आपस में इख्तिलाफ करके बातें तर्क किए बैठे। बड़ा भाई छोटे भाई बात करता नहीं, छोटा भाई बड़े भाई बात करता नहीं, भाई बहन को बात करती नहीं, अब बेटे से बात नहीं करता, बेटा बाप से बात नहीं करता, जमात के एक अफराद दूसरे अफराद को बात नहीं करते, ये महल्ले वाले वो महल्ले वाले में बात नहीं करते, और जमात के कोई भी अच्छे खिदमत गुजार रहे या तो उनसे हसद करना, या तो उनके टांग खिंचाई करना, या तो उनके खिलाफ साजिशा कर वो भी बता करना। कब तक भाई चलेगा? है सो चार अंगलियां हमें, है सोच एक मुट्ठी हमें, हमारे अंदर भी इख्तिलाफ करो। अगर तुम्हें इख्तिलाफ करने से पैदा हुई, फितने करने से पैदा हुई, करो, लेकिन नुकसान जमात का नहीं होता, तुम्हारा होता। अल्लाह के नबी कहते अल्लाह पीर जुमेरात को हर मोमिन की मग़फ़िरत करता है, लेकिन उन दो मोमिनों की मग़फ़िरत नहीं करता जो आपस में बातें तर्क किए एक दूसरे पर कीचड़ उछाले फिर रहे हैं। इन्हें उसकी बुराई, उन्हें उसकी बुराई, उन्हें उसके खिलाफ साजिश है, इन्हें इसके खिलाफ साजिश है, बातें तर्क, एक दूसरे को बात नहीं करते, नफरत सीने में, सीने के अंदर कीना भर को पड़ा। अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं करता। अल्लाह बोलता जब तक ये दो भाइयों के बीच में सुलह नहीं हो जाता, इन्हों सलाम दुआ कर को बातचीत नहीं कर लेते, मैं इन दोनों की मग़फ़िरत नहीं करता, कहता अल्लाह। और उनकी इबादत आसमानों में जाकर कबूल होना तो दूर की बात, सिर के एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं जाती, ना नमाज, ना रोजा, ना दुआ, ना सदका, ना खैरात, ना फर्ज, ना नफिल, कोई इबादत अल्लाह सिर के एक बिलिश्त ऊपर नहीं लग जाती। इसीलिए जमात पे इत्तेहाद बाकी रखने, सामने कौन तो भी तुम्हारा दुश्मन बन दे, कौन तो भी तुम्हारा बुरा चाहने वाला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरे भाई कैसे हैं मेरे भाई, खैरियत से हैं क्या, सलाम करो। अल्लाह के नबी कहते जब दो मुसलमान आपस में एक रास्ते में आ जाते हैं, दोनों आपस में बातें छोड़ डाली, दोनों एक दूसरे के खिलाफ नफरत रखते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह की निगाह में बेहतरीन आदमी वो है जो सलाम करने में पहल करता है। हमें क्या करती? तकब्बुर, अनानियत, घमंडी, इन्हें मुझे सलाम नहीं करता, मैं कहीं दूसरे सलाम करना, इन्हें मेरे सामने नहीं झुकता, मैं कहीं किसके सामने झुकना। हाँ, ये डिग्निटी, ये तुम्हारे अंदर की अनानियत, ये घमंडी क्या भी काम का आती नहीं, दुनिया में भी जलील होती, तुम्हें आखिरत में भी जलील होती। ये डिग्निटी छोड़ डालो, अपने आप को ज़ेर करने की कोशिश करो, तकब्बुरी से सीना तानने को, आसमान को देखने वाले नको बनो, सर झुका दो, जमीन को देखो चलने वाले आजिज, इनके सारी नरमी मिजाज पैदा करने वाले मोमिन बनो। अल्लाह को वो ज्यादा पसंद है, अकड़ने वाले अल्लाह को पसंद नहीं। दो मुसलमानों में वही अल्लाह की निगाह में बेहतर है जो सलाम करने में पहल करता है। उन्हें करें दे नहीं करें देती, तुम्हें करो जो सलाम हो, तुम्हें मिलो से जाको, उन्हें तुम ना बात करें दे नहीं करें, तुम्हें मिलो। क्या वास्ते मिलो? पीर जुमेरात को अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत तो भी करें दे, उसके वास्ते मिलो। तुम्हारे नेकियां, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी इबादतें सर के बलिष्ठ ऊपर नहीं बल्कि आसमानों में जाकर तुम्हारी इबादत को अल्लाह कबूल कर सके, उसके वास्ते मिलो। दिलों का कीना साफ रखो। अल्लाह के नबी एक रात दरस दे रहे थे, एक आदमी सामने से जा रहा था, नबी ने फरमाया ऐ लोगों, किसी जन्नती को देखना चाहते हो फलां को देखो। एक दिन, दो दिन, तीन दिन लगातार नबी ने उन तीनों दिन फरमाया किसी जन्नती को देखना चाहते हो तो उनको देखो। एक सहाबी उनके पास गए, 3 दिन रहे, क्या भी अमल देखे नहीं। जब आ रहे थे पूछे क्या तो भी करती भाई तुम्हें? अल्लाह के नबी तुमने लगातार 3 दिन जन्नती 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 का बशारत किया ना भाई। उन्होंने बोले जब मैं सोता हूं तो अपने सीने को साफ करके सोता हूं, सबको माफ करके सोता हूं, मेरे सीने में किसी के खिलाफ कीना मैं नहीं रखता, यही मेरी सिफत है। जाकर नबी को बोले, नबी ने कहा उनकी इसी अदा से अल्लाह उनको जन्नती बनाया। आज हमारे सीने में पहाड़ों के वक्त तक कीना भर को पड़ा, लोगों को खाली हमारी सूरतें दिखती, हमारा दिल नहीं दिखता, दिल के अंदर नफरत भर लेकर रखी, हमें एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी करते, अदावत करते, हसद करते, कीना करते, सारे भर 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 को रख ली हमें। वो दूसरे को नहीं दिखता, खाली सूरत दिखती ना, सूरत सुनना, अंदर पूरा चुनना, ऊपर से हजरत शरीफ, अंदर से एक नंबर के शैतान। अल्लाहु अकबर। मोमिन वो होता है जैसा ऊपर होता है वैसा अंदर से होता है, जैसा सूरत उसकी सुनना होती है अंदर भी सुनना ही होता है। वही से मोमिन बनने की कोशिश करो। और मेरे दीन और इस्लामी भाइयों,
हमारी जिंदगी का मकसद है अल्लाह को राजी करना। अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अल्लाह इस दुनिया में हमने पैदा किया, उसे राजी करने के लिए अल्लाह ताला इस दुनिया में हमको बनाया। और एक आखिरी वाकया बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक अल्लामा इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इब्नुल क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपनी किताब के अंदर एक वाकया नकल किया है कि अबू आमिर नाम के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मुहद्दिस गुजरे हैं। वो पूछते हैं कि किसी ने उनसे पूछा आपकी अज़दवाजी जिंदगी कैसे गुजर रही, मियां बीवी की आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही। वो बोले शादी होकर 20 साल हुआ, बड़ी खुशगवार गुजर रही है मेरी जिंदगी, बहुत ज्यादा खुशगवार। 20 सालों में मेरी बीवी की तरफ से कभी एक हरफ शिकायत में नहीं देखा, एक हरफ शिकायत में नहीं देखा। उन्होंने ताज्जुब होकर पूछे है अबू आमिर यह कैसे मुमकिन है, 20 सालों में कभी तुम्हारे मियां बीवी के बीच में झगड़ा नहीं हुआ, कभी इख्तलाफ नहीं हुआ, कभी तुम्हारे घर में कोई फितने नहीं हुए, इतने सुकून से, इतने अमन से, इतने प्यार मोहब्बत से तुम्हें रही, कैसे मुमकिन है ये। उन्होंने बोले अपनी जिंदगी का वाकया, जब मेरा निकाह हुआ, मेरी शादी हुई, मैं अपनी दुल्हन को पहले दिन जब उसके कमरे में गया, मेरी निगाह देखा मैंने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसकी नेक सिरती के बारे में सुनता था मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और 2 रकात नफिल नमाज मैं अल्लाह के शुक्राने में अदा करने के लिए खड़ा हो गया। मैं जब नफिल 2 रकात नमाज पढ़ के सलाम फिर के देखा तो मेरी बीवी भी मेरे पीछे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी। मैंने उनसे पूछा कि तुम क्यों पढ़े, वो बोले कि आप क्यों पढ़े, आप जैसी नेक सीरत बीवी को अल्लाह दिलाया बोलकर शुक्राने में 2 रकात पढ़ा, आप जैसे नेक सीरत शोहर अल्लाह मुझे मिलाएगा तो मैं भी शुक्राने में 2 रकात नमाज पढ़ी। अच्छा, उसके बाद जब मैं अपनी बीवी को सलाम करके मुसाफा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मेरी बीवी ने कहा जरा रुकिए, मुझे आपसे जरा सवालात करना है, उन सवालों के जवाब दीजिए। क्या है, मुझे यह बताइए कि आपको क्या क्या पसंद है और क्या क्या नापसंद है, ताकि मैं अंडरस्टैंड हो जाऊं और मेरी जिंदगी वैसे ही गुजारूं, जो आपको पसंद है उसी को मैं करूं, जो आपको नापसंद है उससे मैं बच जाऊं। तो वो बोले ठीक है, मुझे ये चीजें पसंद है और ये चीजें नापसंद है। ठीक है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप अपने रिश्तेदारों में किनके साथ और पड़ोसियों में किनके साथ कैसे हो मुझे बता दें, और मैं किनके साथ कैसे रहूं ये भी बता दें, ताकि आपके नापसंद लोगों को घर में आने की आपके गैर मौजूदगी में मैं इजाजत ना दे सकूं, उनसे कोई राब्ता ना रख सकूं। किनसे मुझे कैसा राब्ता रखना है, किनसे कैसा सलूक करना है मुझे अच्छी तरह बता दे। ठीक है, मैंने बता दिया, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनके साथ आप ऐसा सलूक रखिए, और ये क्या है फला मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, इनकी खिदमत ये कीजिए। मैंने सारी तफसील बता दी। उसके बाद वो कहती है मेरे शौहर, मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं ये कोशिश करूंगी कि आपके फला फला रिश्तेदारों के साथ जैसा आपने कहा वो सलूक करूंगी, उनके साथ वैसा रवैया रखूंगी, उनके साथ वो मोहब्बत से पेश आऊंगी, आपके पसंदीदा चीजों को ही करूंगी और आपकी नापसंद हर चीज से मैं क्या है बच के रहूंगी। उसके बाद मेरी बीवी, आज 20 साल हो गया, हमारे कई बच्चे हो गए, आज भी मेरी बीवी जो शबे ज़ुफ़ाफ़ा के वक्त मुझसे वादा की थी, अपने वादे के मुताबिक वो जिंदगी गुजार रही है। मुझे मेरी बीवी की जानिब से कभी हरफ शिकायत नहीं मिली। कई कतो मुझे नाराज करने वाला कोई काम वो नहीं करती, मुझे नापसंद करने वाले लोगों से कभी वो नहीं मिलती। जैसा मैंने उसे उसूल बता दिया उसी उसूल से वो चलने कर जाती है। फिर मैंने भी उससे कहा कि तुम्हारी क्या पसंद है वो मुझे बता दीजिए, तुमको किस चीज से नाराजगी होती है वो मुझे बता दीजिए। मैंने भी मेरी बीवी की बातें सुन लिया। हम मियां बीवी वही काम करते हैं जो एक दूसरे को पसंद होता है, उन चीजों से बचे रहते हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं होता। यह जिंदगी का सुनहरा मौका है। ये अबू आमिर बहुत बड़े मुहद्दिस, वो अपनी जिंदगी के सुनहरे लम्हात को बयान करके बताते हैं, अगर
तुम्हारा उठना बैठना जमात के किसी आदमी से होता है, घर के किसी फर्द से तुम्हारी रिश्तेदारी है, या किसी से तुम्हारा लेवा देवी है, तुम्हारा बिजनेस पार्टनरशिप है, कोई भी है, उसकी पसंद क्या, उसकी नापसंद क्या, किस उसूल से आपको कारोबार करना है, किस उसूलों से आपको बचे रहना है, कैसा आपको रिश्तेदारों के साथ, कैसा आपको पड़ोसियों के साथ रहना है, हर किसी के मामलात को, उनके जहन को, उनके हिसाब से आप लेकर चलते रहोगे, मकसद अच्छा गुजरता रहेगा, कोई किसी को शिकायत का मौका नहीं देगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको जब तक दुनिया में जिंदा और बाकी है, अल्लाह नेक आमाल करते रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हर गुनाहों से, हर बुराई से बचे रहने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे के दिलों में उल्फत और मोहब्बत अल्लाह हमारे दिलों में पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।